afternoon, ma'am. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Still, good afternoon, dear. Still, students are joining. Okay, so we will be continuing with the foundation of the information systems, and then we'll gradually move on to. Hope you all remember what we covered in the last session. Ma'am, your voice is cracking. So, can we start? Voice is Yes, lagging. ma'am. Still, is it fine now? Yes, ma'am. Ma'am, it's It's fine. lagging. Still lagging. Acha, let me talk first, then we will decide. If I'll just check the settings then. So, hope you all remember what is data, what is information, and what is knowledge. Yes, correct, students? Yes. Yes. So, on the daily basis and in today's scenario on the real-time basis, we are collecting the data, okay, and then we are contextualizing it, categorizing it, calculating it, and condensing those data so that it can be converted into proper information. Okay? Yes. Any issues? Any problem with this? Your voice is I know little just tricky. after. Still, my voice is lagging. No, ma'am. Okay, I know after lunch break, people generally feel very drowsy, but still we can't do anything. So this is that we have discussed all these things. Today we will be starting with the attributes of the information. Okay, attributes means what makes an information a good information. Okay, generally what happens when you are जैसे भी हम बात कर रहे थे categorizing of data after doing the condensing of the data, contextualizing of the data, all this actually results in the value of information. So if your information is valuable, आप कैसे decide करोगे कि आपके पास बहुत ही valuable information? How? Relevant होनी चाहिए. Relevant आपको क्या अच्छा ठीक है मान लो for example I gave you any information, how you will decide it is relevant for you or not? सोर्स चेक करेंगे मैम कौन Yes, सी ma'am. सोर्स से आई थी. According to, I'll check my if data is important to me through what's my requirement. It is correct or not. Okay. If it's giving Yes. me the देखो, ये thing सब I तो सब- want. Yes, in fact, actually, एक चीज और आप इसमें आप सब जो बोल रहे हो, all the answers are correct, but one very important. अच्छा, one more thing. I request all the students to please rename themselves as your enrollment number underscore your name because it creates problem in your attendance compilation. So please do that, students. All those who are entering just by their name, please rename yourself as enrollment number underscore your name. Got it? Yes. So the one very important thing that it is a valuable information because it helps you in making decisions. ठीक है आपके डिसीजन मेकिंग में आपको कोई इंफॉर्मेशन अगर हेल्प कर रहा है दैट इज द बेस्ट एंड द मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यू कैन. ओके मान लो कोई इंफॉर्मेशन आप यूज किए एनीथिंग एनी इंफॉर्मेशन व्हिच यू गॉट एंड यू हैव यूज्ड दैट इंफॉर्मेशन इट हैज रिजल्टेड इन ग्रेट लॉस देन व्हाट्स द पर्पस तब आप उसकी सोर्स ढूंढोगे आप उसको कैसे प्रोसेस किया गया है ये चेक करोगे बोलोगे कि इसकी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम maybe you have used wrong tool for processing those information for those data. तो इसीलिए ये सब सारी चीजें आप देखो सबसे पहली बात होती है सबसे मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इज दैट इंफॉर्मेशन व्हिच फैसिलिटेट्स यू इन टेकिंग द करेक्ट डिसीजंस. ओके आप खुद सोचो ना आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है अगर कितना भी रेलेवेंट रहे कितना भी रिसोर्सफुल रहे अगर आपकी किसी यूज का नहीं है अगर यू कांट टेक एनी डिसीजन या फिर आपकी नॉलेज नहीं इंक्रीज होती तो क्या क्या पर्पस क्या है उसका. So it's just like that. So that's obviously for making the valuable information. Okay. अभी जब जो for good decision making your information अब हम आएंगे for good valuable बनाने के लिए उसको informative बनाने के लिए उसको decision making में help करने के लिए information की क्या criteria होनी चाहिए अब हम बात करेंगे कि criteria होनी चाहिए कि it should be relevant. अब हम बात करें.
relevant information होना चाहिए. Relevant in the sense that maybe sometimes it can happen that कि आपको पता चल जाए कि मुझे मान लो फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल एनी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप सिर्फ सीधे सीधे अगर आपकी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, जो डेटा रिट्रीविंग है, वो ऐसे रिट्रीव करके देगा जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेनी ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन यू अप्लाई फॉर द जॉब्स उसमें लिखा रहता है 15 इयर्स ऑफ रेलेवेंट एजुकेशन शुड बी देयर. अभी यहाँ पे रेलेवेंट का मतलब क्या होता है? जॉब के लिए हम क्वालिफाई कर रहे हैं, मे बी मैंने 12 इयर्स में ही अपना पूरा कंप्लीट किया हो, मे बी आई हैव कंप्लीटेड इन 13 इयर्स ओनली, मे बी इन 14 इयर्स ओनली आई हैव कंप्लीटेड माय एंटायर जॉब. आई एम क्वालिफाइंग फॉर द जॉब और नॉट, दैट शुड बी मेड इन दैट सेंस. सो आपको इतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि सो दैट इजीली पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज रिलेटिंग विथ यू और नॉट. So you can just see the example over here. Information must pertain to the problem at hand. For example, the total number of years of education may not be relevant to a person's qualification for a new job. But relevant information might be that the person has so many years of education in mechanical engineering and so many years of experience. So the information must also be presented in a way that helps a person to understand it in a specific context. समझ रहे हो मेरी बात? किसी कॉन्टेक्स्ट में, जब हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम, कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में आपसे आपकी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, that needs to be relevant and it should be made available to that person who is actually wanting that kind of information. समझ रहे हो मेरी बात? Then complete. Half information is no information. In fact, it is also being told that partial information देना इससे अच्छा आप मत दो किसी को information, ठीक है? वो ज्यादा better है. Not giving any information to any information. It should be complete. Complete करो. उसका purpose क्या है of distribution? Then only pass it on to your employees, your customers, or any of that sort. Whomsoever is the end users of those information. So partial information is even worse than no information. For example, marketing data about household incomes may lead to bad decisions if not accompanied by vital information on the consumption habits of the targeted population. So it's like that. So make it complete, always complete. Then accurate. Accurate होना और भी ज़्यादा ज़रूरी है. Correct data. Obviously उसके लिए आपको correct data चाहिए. Anonymous information may lead to disastrous decisions. For example, an inaccurate record of a patient's reaction to penicillin may lead a doctor to harm the patient while believing that she is helping them. So इसीलिए हर accuracy check करनी चाहिए कि इतने लोगों को दिया, उसके कोई side effects तो नहीं हुए, any other comorbidities have not started. So all those things needed to be taken into consideration for making information accurate. Then current. पहले क्या होता था, अभी इन टुडे सिनेरियो स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट, आज से अभी से 1 घंटे पुराने जो डेटा आपके हैं ना, जो फैक्ट्स हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स या डेटा व्हिच इज कलेक्टेड ऑन अ रियल टाइम बेसिस इन टुडेस सिनेरियो, अभी वो डेटा भी हिस्टोरिकल डेटा हो जाता है. कल की डेटा तो बात की बात. 1 hour बिफोर, इनफैक्ट मे बी 1 minute बिफोर डेटा जो होता है वो भी आपकी historical data हो जाती है. That is not the current data. So in this way, you have to understand that how it has become very, very important to provide your employees, your customers, your end users a very, very current data which is actually helpful for them to do the business or any kind of decisions. Decisions are often based upon the latest information available. But what was a fact yesterday was no longer be one today. आज वो नहीं, मे बी वो फैक्ट खत्म हो गया, वो फैक्ट रॉन्ग हो गया. फॉर एग्जाम्पल, अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू परचेज अ स्टॉक टुडे बेस्ड ऑन यस्टरडे स्टॉक प्राइसेस मे बी कॉस्टली. ओके, एंड जो आप स्टॉक में जाते हो उसके लिए बहुत करेक्ट आपको लगेगा कि आप कल का क्या स्टेटस है, उसके बेसिस पे आज आप इंट्राडे अपनी स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो. दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. देन यू आर मेकिंग अ रॉन्ग चॉइसेस. Okay, so this is the way you have to make and update your system with all the current information made available to your customers as well as your employees. Again, it should be economical. See,
The information system implementation incurs huge investment. बहुत investment लगता है इसको. क्यों? Because you have to prepare the platform, infrastructure, integration होती है, उसकी training होती है. It incurs actually huge cost for any organization. So once it is said and done, it is integrated and it is finally implemented in the organization, it should be made clear that now it is not incurring any cost. Getting my point? So once it is done, it is obviously आप upgrade करते हो वो अलग बात हो जाती है, but हम बार बार उस पे पैसे नहीं खर्च करते. आपकी जो economical होनी चाहिए when you are collecting the data and the transformation of those data into information has to be very, very economical in nature. So in today's business setting, the cost of obtaining information must be considered as one cost element involved in any decisions. For example, demand of a new product must be researched to reduce risk of marketing failure. So new product, आप research वो क्या हो रहा है? ये सारी चीजें real time research चल रही है. Nobody is there and happening. आपकी day-to-day data collection कर रहे हो. So obviously it can happen through a good information system. So but if market research is too expensive, इसके लिए आप अलग से बाहर से hiring तो नहीं करोगे. Research cost huge investments. So your information should be capable enough of doing all kinds of other tasks which is being done by the organization. Okay, any problem with this, student? Please, एकदम बहुत simple है. Just go through it. Relevant होना चाहिए, complete, accurate, current, economical. बस और एक example डाल दो. Done. Then, what's the difference between data and information? Obviously, till now we have been discussing data is raw, unorganized facts that need to be processed. It can be something simple and seemingly random and useless until it is organized. अगर आपको मैं सिर्फ एक simple data दे दूं, उसका क्या फायदा? मैं उसको properly organize करके and give you relevant things, then only it will be useful for you. If I tell go and search anything, any data, क्या आप बोलोगे मैम क्या बोल रही है कुछ भी सर्च करने के लिए और मुझे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रही, कोई कुछ भी नहीं, nothing she is providing, then she is telling to search. एक प्रॉपर पूरा सेटअप होना चाहिए, फ्रेमवर्क होना चाहिए. In that you need to do searching, gathering, processing and finally disseminating. That information, when data is processed, organized, structured or presented in a given context so as to make it useful, it is called information. Okay, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत simple है, कोई इसमें rocket science है ही नहीं. Knowledge is closely linked to doing, as we have done it earlier also. Doing implies know-how and the understanding of the entire business processes. In fact, students, knowledge is actually using many sophisticated technologies, which is now upgraded, which has really grown like anything, and it is helping and facilitating business in reaching new heights. How? For example, there are some technologies like AI, machine learning, neural networks, fuzzy logic. These kind of technology are more towards human understanding, that how your customer behave. पहले तो आप organizational behavior पढ़ते हो, customer behavior पढ़ते हो, वो लेकिन हो सकता है इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद उनकी customer behavior, consumer behavior is one of the very important subject of marketing. लेकिन इसी को मैं पूरा का पूरा ये कर दूं, automate कर दूं, to understand the behavior of your customer. Alexa जानते हो ना, सबको पता है? Yes. Yes, ma'am. हाँ, Alexa एक ऐसा है, सब पूछते रहते हैं क्वेश्चन. एक रिसर्च हुआ था जिसमें they have found that what kind of questions generally kids, small kids means age group, ask from Alexa. पता है रिसर्च में फाइंडिंग क्या आई? They ask spelling, school going kids. सबसे ज्यादा अगर कोई जो नए छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा अलेक्सा से क्या पूछते हैं? स्पेलिंग्स पूछते हैं. Why? Obviously बात अपने बचपन याद करो, सबसे ज्यादा किस चीज पे हम लोग सब कोई in our childhood when we start learning and all, उस टाइम पे सबसे ज्यादा if we struggle is on spellings. Yes, ma'am. So now ऐसे ही वो डेमोग्राफी वाइज उन लोगों ने रिसर्च किया कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन हाउसहोल्ड, कहाँ हिट कर रहे हैं वो,
कहाँ हिट कर रहे हैं? सीधे सीधे आपके जो टारगेट कंज्यूमर्स है वो उनकी डिमांड पे हिट कर रहे हैं, उनको क्या ज्यादा जरूरत है? सबसे ज्यादा अभी क्यों, अभी देखो सबसे आप अभी बहुत ज्यादा इनोवेशन हुआ है इन लिसनिंग ऑफ म्यूजिक। कौन से गाने सबसे ज्यादा हिट होता है कि ये गाना प्ले करो, any language, whichever language you like, whichever song you like। देखो कितने सारे लोगों ने सिर्फ मतलब सॉन्ग एप्लीकेशंस में इनोवेशंस हुए, इतनी प्ले करवाते हैं कि लोग देयर आर डिफरेंट मीडियम्स थ्रू व्हिच इफ यू कांट कैरी अलेक्सा को इतने ये आपने यूट्यूब म्यूजिक भी हो गई है ना, यूट्यूब का एक आता है ना म्यूजिक का, wherein you can seamlessly listen to the music, सब idea music, when you name it, and Airtel music they are giving it, so they are hitting कि कहाँ लोग पूछ क्या रहे हैं कि क्या expectation है। So ऐसे आप there are certain tools, techniques through which they just apply knowledge management system में later on we will do with business intelligence and expert system techniques, which is actually facilitating very good organizational methods of collection of the data. Now, knowledge is a fluid mixes of framed experience, values, contextual information, expert insights, and grounded intuitions that provide an environment and framework for evaluating and incorporating new experiences and information. Students, यहाँ पे मैं expert system के बारे में बात करती हूँ. Expert system is something which is made, a system designed in such a way which is full of experiences of good decisions. In fact, sometimes wrong decisions also. अब वो जो wrong decisions को लोग क्यों ले रहे हैं? So that people can understand कि इस context में ये decision लिया गया तो वो गलत था. You should understand that also. It's a contextual based decision making which was taking place. Again, framed experiences. आप लोग गैरी कैस्परॉव का नाम सुने हो स्टूडेंट? गैरी कैस्परॉव नहीं सुना है? No, ma'am. No, ma'am. Not fond of chess? विश्वनाथन आनंद का तो सुना होगा. Yes. Yes, ma'am. Gary Kasparov, मतलब he is still there, but he was at one point of time he was world's मतलब बेस्ट मीन्स उसके कहते हैं ना उसकी माइंड मैपिंग की गई थी पूरी की पूरी, ठीक है, बिकॉज नोबडी कैन डिफीट गैरी कैस्परॉव। अभी IBM ने एक एक्सपर्ट सिस्टम फ्रेम किया इन विच he designed, coded the entire robot in such a way in which Gary Kasparov की जो पूरी जो moves होते थे ना in his games in front of his राइवल्स एंड जो भी उनके सामने जो टीम रहती थी, उन्हीं की चीजों को लेके, उन्हीं के ऑल द मूव्स एंड ऑल द स्ट्रैटेजीज व्हिच ही यूज्ड, उसको लेके कोड करके उन्होंने पूरी बनाई। एंड यू नो फर्स्ट टाइम ही वाज डिफीटेड बाय दैट रोबोट। उसने बोला भी उस मीटिंग में कि माय मूव्स हैव ओनली डिफीटेड मी टुडे। बाय ऑब्वियस सी बात है, उसी के मूव्स को उसी पे उसको फ्रेम किया गया। एंड एक्चुअली उसकी ब्रेन मैपिंग भी हुई थी कि हाउ ही यूज्ड टू डू इट। एंड उसके जितने भी गेम्स थे, बेस्ट ऑफ द गेम्स वेयर इन ही वाज डिफीटेड इन सम ऑफ द मूव्स एंड ऑल, उसको भी रिकॉर्ड किया गया, उसका बेस्ट निकाल के, एंड देन इट वाज डिजाइंड इन सच अ वे। सो इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी हाई टेक टेक्नोलॉजी, बट मेकिंग इट, आप इस कहते हैं ना, जितना हाईटेक, जितना अच्छा टेक्नोलॉजी, जितने कस्टमर आपको यूज करें, जितना आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको बेस्ट यूटिलाइज करे, उतना ज्यादा कोई भी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है आपके मार्केट में। पुश करो, नहीं यूज करेंगे तो क्या जरूरत है? आप भी आप लोग, हम लोग सब कोई 4G यूज कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ अस आर यूजिंग 4G। अभी 5G पुश किया जा रहा है, क्या होगा उसका पर्पस? 5G आएगा तो क्या होगा, क्या कन्वर्जन आएगी हमारी 4G से 5G? स्पीड, ठीक है, काम तो हो रहा है, हम लोग सब अभी है ना डिफरेंट लोकेशंस पे बैठे हुए, ठीक है, कभी वॉइस लैग करता है, अंडरस्टूड, बट अगेन वो मे बी दैट विल हैपन इन 5G आल्सो। नेटवर्क ही नहीं रहे तो फिर क्या करोगे? When this new wave of network will going to enter our market. So this is the way how the things
are getting more and more technology is coming in, and it is now integrated in your system, which is making it more and more sophisticated in nature. Okay, एक और expert system MySyn was developed was cancer detection के लिए use किया गया था, which because earlier cancer detection was very difficult and और generally जिनके पास बहुत ज़्यादा economically जो weak रहते थे उनके लिए वो बहुत ही impossible kind of treatment या diagnosis भी रहती थी, but expert system was generated and it was developed in which the entire जो कहते हैं ना जब diagnose करते हो तो उसके symptoms से तो सारे symptoms को लेते हुए that expert system was developed. Contextual means आपको इस condition में ये problem हो रहा है, then अगर 1 2 3 4 5 सारे अगर आपके symptoms matching with it, then you predict that maybe that you are maybe that person is infected with this particular disease, then you can go for further treatment. So treatment के लिए आप सोचो, and obviously doctors were very less for cancer treatment and all, and that in way back in 70-75 पहला जो expert system developed, but इतना high tech नहीं था, अभी तो ये और भी ज़्यादा high tech because of the integration of new and very sophisticated technologies coming. Okay, अब आप लोग biochips के भी बारे में सुने होंगे. There are many things which are coming up. YouTube में देखो latest trend में क्या क्या आ रहा है. So as a manager, you should be very much aware of all these technologies which is coming in and impacting our life. हम लोग सब यूज भी करते हैं इसको, लेकिन वही है उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, क्यों, कैसे हो रहा है. जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट. चैटबॉट्स जानते हो स्टूडेंट्स? ये सब सारा आपको नॉलेज लेवल है पूरा. Yes, ma'am. चैटबॉट क्या करता है आपका? व्हाट इज द पर्पस ऑफ चैटबॉट? क्वेरी सॉल्व करता है. To assist communication with the customers. अभी आप FAQs जानते हो ना, frequently asked questions. अभी आप ना लोग बड़े ये होते हैं, ये कौन है क्या है, रीड करे. अभी लो ना, रीड क्या करना है, आप बात कर लो. जो questions FAQs पूछे जाते हैं, talk to them just like you are talking with Alexa. So this is the way things are just coming in. There are so many things which is coming, and obviously by the time you will get into organization after 5 years or 6 years, the entire way of doing the business can change. How you are working, that can also change. So this is the way. Never we all have thought of, okay, we are going to interact like this, but we are doing it. The world moves on like this. Now, very important concept, generally people and all of us get confused with information systems and technology. So students really understand first, सबसे पहली बात मैं ये करूँगी, difference between information systems and technology. मैं कुछ terms बोलती हूँ, आप बताओ कि ये IT है या IS है, means information system. अभी मैंने बोला 5G वो technology है या system है? Technology. Very good. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है? Technology. वेरी गुड. मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है? system. यस, मशीन लर्निंग सिस्टम. ग्रेट. एलेक्सा सिस्टम. ग्रेट, बिकॉज इट हैज बीन डिजाइन्ड. इंफॉर्मेशन ऐसा सिस्टम बनाया गया which interacts with you but with the help of different technologies. ऑब्वियस सी बात है ना, आप एक टेक्नोलॉजी है, आप उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी. अच्छा, मोबाइल फोन कैमरा, मोबाइल फोन में जो कैमरा आप यूज करते हैं वो सिस्टम है या टेक्नोलॉजी है? System. अच्छा, जो पिक्सल आप यूज करते हो वो Technology actually. वो टेक्नोलॉजी. यस, वो टेक्नोलॉजी. सो व्हाट इज इट? जितना एडवांस टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस आपकी सिस्टम. ऑब्वियस सी बात है, उतना एडवांस आपका डिवाइस. अभी आपका लैपटॉप है, वो टेक्नोलॉजी है या सिस्टम है? System. Which and कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज हो रही है? इलेक्ट्रिक, नेटवर्क, यू नेम इट. यस, प्रोसेसर. प्रोसेसर क्या है आपका? जितना एडवांस प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, जितनी एडवांस प्रोसेसर उतना महंगा आपका लैपटॉप. जितनी एडवांस आपके प्रोसेसर उतना महंगा आपका मोबाइल फोन. जितना लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम. अगेन इट्स अ सिस्टम.
नेम इम्प्लाइज उतना ज्यादा महंगा आपका फोन डिवाइस जितना लो. So this is the way. Understand. Always try to bifurcate. ये सिस्टम है या टेक्नोलॉजी. आप सीसीटीवी यूज करते हो, ठीक है, वो सिस्टम है या टेक्नोलॉजी है? System. टेक्नोलॉजी है. But when you are watching those videos on your laptops or your mobile phones, क्या हो जाता है वो? System. सिस्टम है. लेकिन जब आप डिवाइस यूज कर रहे हो, यू आर इंसर्टिंग कैमरास, किस लेवल का कैमरा, ये सब क्या बच्चे सारे टेक्नोलॉजी. वो टेक्नोलॉजी है. यस. सो नेटवर्क एक सिस्टम है, बट द नेटवर्क किस रेंज का है, क्या है, कैसे है, वो सब सारी चीजें आपकी टेक्नोलॉजी डिसाइड. Okay, so information systems and information technology, these are the vital component of any successful businesses in today's scenario. आज आप बता दो लोगों के हाथ से मोबाइल और इंटरनेट ले लो, एक दिन तुम इंटरनेट बंद कर दो पूरे इंडिया का. Amazon, Flipkart, Myntra and in today's scenario local business का बिजनेस क्या हो जाएगा? था बंद. ले लो ना एक दिन बस बंद करके देखो पूरे इंडिया. ह्यूज लॉस दे विल इनकर. एक दिन की बात नहीं बोलते क्या होगा, नेक्स्ट डे ऑर्डर हो जाएगा. लेकिन नो, नेक्स्ट डे ऑर्डर कर लेंगे चलेगा, लेकिन एक दिन का इनका प्रॉफिट क्या ये जनरेट करके ले रहे हैं. आज के दिन में बोलो कितने लोगों ने, में से हम लोगों ने, और इन द क्लास ऑफ 49 इंक्लूडिंग मी आल्सो, वी हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम समवेयर और द अदर. At least 50%. 50% से ज्यादा लोग, 50% से ज्यादा लोग आएंगे, including me also, that who have ordered something. So this is the way. इतना ज्यादा profit generation हो रहा है, तो बहुत ही vital component है to remain and succeed in business. Okay, टेक्नोलॉजी या सिस्टम. तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ दोनों सिस्टम और टेक्नोलॉजी की बात करें. टेक्नोलॉजी इंटरनेट ले लो उनसे, सिस्टम उनका आपका मोबाइल सिस्टम पूरा चलेगा. हटा दो, देखो कैसे आप कर पाओ. फोन अभी देखो लोगों को ना सोफिस्टिकेशन का, अब आपको मैं बोलूं कि आपको फोन करके किसी को ऑर्डर करना है, विल यू डू? कि you dial particular number, you jot down the product code and then you just call somebody and tell them कि यार भाई मुझे ये product code send करो इस particular address पे. You are just narrating any at the address to the person who is on the other side of the phone. No. आप करोगे? नहीं बोलेंगे जाने. इससे बेटर No, ma'am. बेटर है दुकान से जाके खरीद. देखो अब ये आदत हो गया. ठीक है. सो एंड आप और सबसे ज्यादा शॉपिंग लेट नाइट शॉपिंग्स होती है, स्पेशली यंग जनरेशन. ये एक और रिसर्च हुआ है, रात को सारे क्यों मिडनाइट सेल क्यों देता है, कभी सोचा है आप लोगों ने? Amazon ले लो, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, मिडनाइट सेल. व्हाट्स द पर्पस? कि इट विल स्टार्ट एट मिडनाइट. सारे होते हैं मोबाइल पे. ठीक है. सो दे हैव आल्सो अंडरस्टूड कि कौन सा टाइम पे इनको हिट करना है. सो दिस हम करने के लिए तो करते हैं, लेकिन बट सी हाउ मच इट इज हैपनिंग एंड हाउ मच दे आर यूजिंग आवर लाइफस्टाइल टू जनरेट देयर बिजनेस. ओके. ऑब्वियसली अगर आप ये सब सिस्टम और टेक्नोलॉजी आज के डेट में अच्छे से यूज कर रहे हो तो आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा, बहुत कॉम्पिटिटिव सेक्टर होगा, एंड देन the economy will grow. Obviously अगर इसकी बात वही हो जाती है, इकोनॉमी अभी हम बोल रहे हैं ना, पैंडेमिक के टाइम it has gone very slow. Why? Because people have stopped purchasing. स्टॉप तो नहीं किया है लेकिन बहुत लो हो गया. जहाँ शुरू होगा again it will again boost up like anything. Okay, now very important concept again today I'm discussing with you students. वो भी कई concept है, efficiency and effectiveness. मैं बाद में आपको इसको टेक्नोलॉजी और सिस्टम से relate करवाऊंगी, but I just want to ask you a literal meaning of efficiency and effectiveness. What's the difference between both? Yes, anyone, please. Efficiency is like the if we have the ability to achieve that, and effectiveness is like how well we have achieved that. Okay, agreed. Anyone else? Effectiveness means how less the resources you use. How less resources you have used.
Okay, चलो agree. Efficiency as in मैम कम में ज्यादा, मतलब कम इसमें ज्यादा कितना कर सकते हैं, और effectiveness is like it's a capability of producing. Capability of producing. Okay, ये भी agree किया. चलो और कोई? लेकिन एक मेन पॉइंट है जो आप लोग अभी तक If ma'am, if a salesperson sells 10 or 20 product at a day, so that is his efficiency. And effectiveness, how he sell the product. I how think. he sells that product. Okay. So, anything else? मैम एक बजट में कितना आउटपुट दे सकती है कोई भी चीज? Agreed. अच्छा, अब एक मेरे क्वेश्चन का तुम लोग जवाब दो. आप लोग सचिन तेंदुलकर को ज्यादा एफिशिएंट बैट्समैन मानते हो या महेंद्र सिंह धोनी? एफिशिएंट बैट्समैन आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट इफेक्टिव. महेंद्र सिंह धोनी. Efficient. Sachin. More skillful, more number of runs, more number of records broken and records under his name. Then Sachin Tendulkar. Efficient. इसीलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ efficiency. Effective कैप्टन की बात जब करते हैं, who is more effective? महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर? धोनी. अभी तो आप बोल रहे थे efficient सचिन है, तो effective लीडर क्यों नहीं बन पाया वो? Ma'am, because he never played with that mindset. No. यही पे डिफरेंस आता है हमारी efficiency and effectiveness. Ma'am, Sachin's efficiency is not as useful as for the team as for Dhoni. For the team, great. You have hit the point. Efficient है, लेकिन effective नहीं है on team's performance. ठीक है, वो अपना सोल प्लेयर है. He is very good. He is an icon. Batsman है तो सचिन जैसा. Means आज भी हम बोलते हैं कि बैट्समैन हो तो सचिन जैसा. But कैप्टन हो सचिन जैसा कोई नहीं बोलता है. Because his efficiency, his skill set has a very little impact on the team's performance. उसकी वजह से टीम बहुत कम टाइम जीती है. भले ही उसने बहुत रन मारे हो, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन that is why effectiveness comes. That maybe you are, देखो efficient होना है, यहाँ पे effectiveness बनने के लिए efficient होना है. But आप थोड़े से skillful कम भी हो, लेकिन you can able to manage with your team. Your words, your way of doing the things can affect the entire team. समझ रहे मेरी बात? की वो एक effective इंसान होता है. समझे? स्किलफुल कोई भी हो सकता है. आज के डेट में there are n number of things which can actually make you more and more skillful, efficient बना सकता है. आप कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकते हो. लेकिन क्या आप 10 लोगों से काम करवा सकते हो आसानी से? यहाँ पे ये डिफरेंस होता है efficiency and effectiveness. Efficient बनना आसान है, ठीक है, लेकिन effective बनना it's little bit difficult. अभी आप क्या कर रहे हो? अपनी efficiency increase कर रहे हो. Okay, you are increasing your efficiency. Why? To sit for a longer period of time, to gain more and more, learn more and more things. ठीक है, जो चीजें आज तक आपको नहीं पता थी आप वो भी learn करते हो. Getting my point? But effectiveness जब आप लोगों के साथ डील करना, अब आप जो आपको पता है, you want to let it know to the world also. तो यहाँ पे ये effectiveness की बात हो जाती है. Getting my point, students? आप देख लो, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो वो बुक 7 Habits of the Highly Effective Managers. Effective, efficient managers का तो नहीं आया कोई बुक. Efficient बन सकते हो आप, skillful हो, you are educated, you are experienced, then you are efficient. अभी किसी ने सेल्स का एक एग्जांपल लिया था कि one person has sold 10 to 12. ठीक है, जब बात आती है efficiency की, in a team, if a salesman, सबने किया, efficient है, बहुत अच्छा सेल्समैन है, सबने आपको 10-12 सेल किया एक प्रोडक्ट in one day. But effective कौन है? Who has convinced the new customer, maybe भले ही उसकी सेलिंग कम हुई हो, ठीक है, but who has gone totally into new zone and sold the product. उन्होंने वहां के कस्टमर्स को एकदम कन्विंस करके वो चीजें बेची हो. Maybe again उसका कस्टमर कम भी हो, hardly matters. इसीलिए हम ये चीज देखते हैं, सिस्टम और टेक्नोलॉजी. आई विल जस्ट रिलेट इट विद
सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी होनी चाहिए आपके सिस्टम में, ठीक है। एफिशिएंट मींस आराम से आपने ऑर्डर किया, फटाफट आपका सब कुछ हो गया, पेमेंट इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। बट इफेक्टिवनेस जब आएगा जब उसको ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करना स्टार्ट करें। ऑब्वियसली बात है, जितना सिंपल होगा पीपल विल स्टार्ट यूजिंग मोर एंड मोर थिंग्स। अभी आप बताओ जूम कितना इजी मेथड है, अगर यही कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता तो पीपल वुड हैव यूज्ड इट? No. No, ma'am. No, ma'am. इन टुडेज सिनेरियो वी कैन सी, आप लोगों के यहाँ जो हाउस हेल्प्स भी आते होंगे उनके भी बच्चे आज जूम या गूगल मीट या ये माइक्रोसॉफ्ट है जिसपे आराम से क्लासेस करते हैं। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड होता तो दे वुड हैव बीन, they must have been using it. Yes, ma'am. A big note इस ये है इफेक्टिवनेस है उस सिस्टम की कि कोई भी यूज कर सकता है, उसके लिए आपको एक डिग्री की जरूरत नहीं है कि आप बीटेक हो, एमबीए हो, then only you will be able to use that system. No. So that is why it increases the efficiency. Efficient means making it quicker. अभी आप सब बोल रहे थे ना, तुरंत हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये सब सारा सब कुछ कर दिया and then we have completed our task. लेकिन इफेक्टिव वो है जितना ज्यादा आप इम्पैक्टफुल हो, इफेक्ट समझ लो, इफेक्ट जितना ज्यादा विद एफिशिएंसी यू हैव टारगेटेड मोर एंड मोर कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, सिस्टम और टेक्नोलॉजी अच्छे। आज एलेक्सा बच्चा यूज कर सकता है क्योंकि एफिशिएंट है, ओके, बिकॉज इट कैन सॉल्व एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स, इट कैन गिव आंसर्स टू एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स। इफेक्टिव है कि कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे, एनीवन। समझ में आया स्टूडेंट? सो प्लीज आप लोग भी पढ़ना कभी हाईली इफेक्टिव 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव मैनेजर्स, इट्स गुड बुक। Then Sure, ma'am. it then facilitates managerial decision making and work group collaboration. Obviously बात है, आप जितना interact करते हो, work group collaboration ये सब करेंगे हम लोग GDSS में later on types of information system में there is a group decision support system. Today everything system makes the things very much transparent in nature. Your team members at what time what they are doing you are fully aware of it. Okay, अभी एक कोई सीक्वेंस काम होता है तभी हम ये भी पढ़ेंगे कैसे आप लाइन ऑफ कंप्यूटर्स पे काम करते हो इन अ प्रोजेक्ट, ये सब सारी चीजें देन दैट विल आल्सो वी विल डू later on in later classes. So how your group is collaborating with each other real time basis पे, so yes, so that the decision making can be done on a very very faster. So your system and technology is facilitating in doing that. So overall what is your information system? It is an organized combination of people, hardware and software, communication networks, data resources, policies and procedures. People क्यों? Because we are using it. See, अभी भी first priority people ही लोग बोलते हैं ना, people यहाँ कौन हो गए students? Your employee, your customers, your suppliers, your the main partners who are your distributors who are actually helping you out in doing. ठीक है, आप सबको कंबाइन करके एंड देन यू आर रनिंग योर बिजनेस। ओके, आज देखो, आज Amazon इज तो नॉट अ मैन्युफैक्चरर बट वो आपको बड़ी कॉन्फिडेंटली लिख के देता है कि दिस प्रोडक्ट वाज डिलीवर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अरे भाई, तुम तो बना नहीं रहे हो, तुम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, सारा तो उनका आउटसोर्स्ड है, सब कुछ यू नेम इट ना, सारी चीजें उनकी आउटसोर्स्ड है। वो उनके पार्टनर्स हैं, वो भी लोकल पार्टनर्स होंगे जो उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये सब चीजें हैं, फैसिलिटी सेंटर्स हैं उनकी, इनका इतना बड़ा नेटवर्क है, पूरी सप्लाई चेन है व्हिच इज मैनेजिंग द एंटायर सेटअप। फिर भी वो कॉन्फिडेंटली लिख देते हैं कि वी विल डिलीवर, और करते भी हैं। मतलब मे बी इन सम ऑफ द टू केसेस एरर्स कम, दैट्स ओके, बट उनका सप्लाई चेन इतना सॉलिड तरीके से काम करता है बिकॉज दे हैव मेड द, जो अभी हम बात कर रहे थे ना, वर्क पूरा कोलैबोरेशन, आपकी जो वर्क ग्रुप है, उनका जो सेटअप है, it is organized and systematic in nature, which actually कि आपने कुछ यहाँ पे ऑर्डर किया, that will be directly delivered to the manufacturer, फिर manufacturer से distributor, फिर distributor से you can keep on tracking, और वो आपको नहीं करना है, वो Amazon is doing everything for the tracking also. उनको अपना पूरा टाइमलाइन शेड्यूल पता चल गया है कि इतने से इतने दिन में पहुंचने के लिए इतना टाइम लगेगा. So that is how they are managing. So it is always a combination of your people, not only your employee, but again I'm telling you, it's a combination of people, customers, suppliers, okay,
and channel partners, your distributors, everyone. ठीक है? Then it is also the organized combination of hardware and software. सही बात है. सॉफ्ट हार्डवेयर की पहली रिक्वायरमेंट होगी, सबको सिस्टम चाहिए, वायर्स चाहिए, सेटअप चाहिए, all these things are required. Electricity चाहिए, servers चाहिए, all these are required. And obviously softwares. Again, class, just make it a point that software system applications, we can use this as a synonym terms. Softwares, systems. Softwares, a combination of softwares makes system. System is a complete procedure through which you follow and do the entire thing. So maybe many times it is known as application also, software also, and system also. Then comes communication networks. Obviously, network नहीं तो कुछ नहीं, सब बंद. Okay, सब बंद. अभी जैसे हम बात करें. So how you communicate? Your network is required. Proper internet connections are required. Your main network of communicating, phone calls, dial-up service, everything is required. So ये सब सारी चीजें हम अलग से करेंगे. So I'm not getting more into it, but you have understood obviously what is communication networks. Then data resources, policies and procedures. ये देखो, as a faculty and as in a class I should not say this, but ये ना अभी थोड़ा सा ये ethically correct नहीं हो रहा है. Data resources की अपनी policies होती है that all the organization needs to follow, but many of the big giants are misutilizing these resources. Data resources आपके customer data, आपके employee data, आपके suppliers की data, आपके bankers की data, आपके distributors की data, इसकी अपनी कुछ policy होती है. You cannot share it with everyone. Do you agree with me? आप तो सब news देखते होगे आजकल. क्या होता है? कैसे customers की data ऐसे unanimous किसी के पास भी चला जाता है. So this is not done, okay? But है rules regulations बने हुए हैं इसके लिए. That so you have to follow that. Organization और कोई भी information system को इसको follow करना पड़ता है. So we will also study in the SDLC कि वो आपका जो legal part है उसको भी आपको clear करके रहना पड़ता है. But this is not happening. Then how in which way information system facilitates? It's facilitating the storing of the information, retrieving of the information, transforming of the data into information, and disseminating information in the organization. Disseminating information means dissemination of information means, students? Ma'am, please explain. Don't know this term. Disseminating means distribution, sharing. Okay, जब आप distribute करते हो, जब इनको देखो information आप बना लिए, लेकिन आपको अपने पास तो रखना नहीं. जब तक आप उसको सबको भेजोगे नहीं, send नहीं करोगे, if you are not going to give it to everyone, how it is going to be valuable for the organization? So distribute it, share with the others, then only they will facilitate. तो पूरा आपका सिस्टम ऐसा बना हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप सबसे बेस्ट अभी ले लो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम, छोटा सा एप्लीकेशन व्हाट्सएप. अभी आपको कुछ शेयर करना हो अपने क्लास के साथ, क्या करोगे आप? एक मैसेज लिखोगे, डाल दोगे. क्या एक सिस्टम है, उसके लिए आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं, कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं. यू कैन डू इट. अभी मुझे कुछ देना हो आप लोग को, जैसे अभी आई हैव अपडेटेड सम दिस पीपीटी ऑन योर क्विक फोर्स, तो ये मैंने वहां पे अपडेट कर दिया. यू कैन टेक इट. सिस्टम में हमारा आराम से डिसेमिनेट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया मेरे स्टूडेंट्स के पास. गेटिंग माय पॉइंट? सो आपको बार बार मुझसे मांगना नहीं पड़ रहा है कि मैम हम कहाँ से लें, क्या लें, कैसे. योर लास्ट क्लास में हमने सेशन प्लान, सिलेबस. एम आई ऑडिबल टू यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. One point is there, from there you can retrieve it. अब आपने क्या किया स्टूडेंट्स? मैंने डिसेमिनेट किया, आपने रिट्रीव कर लिया वहां से. You have extracted it from there. मैंने स्टोर कर दिया वहां पे, that is stored over there. हो गया वहां पे काम. So this is the way how your system is made in such a way, in a processed way, in a systematic way, that all this thing can be done in without the duplicacy of the work. ठीक है, डुप्लीकेसी नहीं आनी चाहिए चीजों. डेटाबेस के फॉर्मेट में सेव होता होगा सब कुछ. ऑब्वियसली हाँ, डेटाबेस की फॉर्मेट में पूरा हम रिपोर्ट बनती है बच्चे. पूरा मैं कभी किसी दिन आप लोग को क्विक फोर्स का दिखाऊंगी कैसे रिपोर्ट बन के आता है. पूरा एक आप पूरा डेटाबेस बना हुआ है डैशबोर्ड्स के फॉर्म. व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई एम टॉकिंग, एवरीथिंग, रिकॉर्डिंग से लेके एवरीथिंग इज अवेलेबल. ठीक है. सो डेटाबेस हम लोग लेटर ऑन वी विल डू, क्योंकि पूरा एक कॉन्सेप्ट ही है डेटाबेस का आप लोगों को करने का.
Then interdependence between organization and information technology. So business strategic objectives and business processes actually is being integrated with the software, जो क्या है, information system है. Okay, then and software or the information system is the combination of what? Just now we have read hardware, data management, and your telecommunication networks. Students, there was a time in 70s when your IT sector was not in such a booming phase. 70s, 80s की बात है. System बनना start हुआ था. MIS was just initiated at that point of time. उस समय क्या होता था? System तो बन रहा था, लेकिन those were not successful in many of the big giants of in the country. LG बहुत बड़ा, सबसे one of the उस 70s का 80s का फाइनेस्ट आपको इनोवेटिव एंड सबसे ज्यादा इनोवेशन अगर कहीं होता था वो एलजी में हो रहा है. उन लोगों ने सोचा चलो हम भी इंफॉर्मेशन सिस्टम भी विल आल्सो इम्प्लीमेंट इट इन ऑर्गेनाइजेशन. फेल्ड लाइक एनीथिंग. अमेजिंग फेलियर. अगर फेलियर की बात हो ना कि ईआरपी और ये सब का फेलियर अगर हम बात करते हैं तो एलजी इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसको बिगेस्ट फेलियर माना जाता है. अभी नहीं, नॉट नाउ, बट एट दैट पॉइंट, वेरी ओल्ड स्टोरी. ठीक है, पता है उस टाइम पे ये सब चीजें हैं कि फेल क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज फेलिंग, बिकॉज दोस वर नॉट टेलर मेड. टेलर मेड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेलर मेड? What do you understand by tailor made, students? Not made as per the organization. Yes. Not made as per the organization needs. Yes, exactly. उनकी needs and requirements को वो नहीं facilitate. उन्होंने बना दिया, ठीक है ये तरीका है, ये डिपार्टमेंट का ऐसे होगा, ये डिपार्टमेंट में ऐसे डेटा एंट्री होगी, लेकिन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट. आप लोगों में से किसी ने लास्ट क्लास में मुझे बोला था मैम कैटेगरी हो सकती है कि किसी को रीजन वाइज चाहिए, किसी को प्रोडक्ट वाइज चाहिए. मुझे नहीं चाहिए, मुझे रीजन वाइज चाहिए, मुझे रीजन वाइज सेल्स का डेटा चाहिए फॉर एग्जांपल. दैट्स माय प्रायोरिटी. तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन वे ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट. अलाइनमेंट नहीं, business IT alignment was not at all established. After that, the trend of आप सोच रहे हो उसी सब टाइम पे MBA's concepts बढ़ने लगे आपको, ठीक है. MBA डिग्री एंड ऑल. पहले क्या होता था, MBA मीन्स सेल्स, सीधे लोग कनेक्ट करते थे MBA मीन्स सेल्स. बहुत ज्यादा इसका ये भी नहीं था कि अगर MBA कर रहे हो तो आपको सेल्स ही करना है. यू कैन आस्क योर पेरेंट्स. इस टाइम पे ये सब सारा कॉन्सेप्ट था, मिसकॉन्सेप्ट्स था. But later on, slowly and gradually, things started changing. People started to understand कि अच्छा ये बिजनेस करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन और इसको मर्जिंग और इसको अलाइन करने की इट्स अ ग्रेट इम्पोर्टेंस. You have to align the strategy of the business, the objectives of the business, and the processes of the business with the technology, and then develop the technology which is required by the organization specifically. हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है आज के डेट में. ईच एंड एवरी वे आप सेम काम कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका वे ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट. इसलिए उस टाइम पे आपको बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस एनालिस्ट, and in the era of 90s it boomed up like anything. And obviously IT sector boom was में बहुत बड़ा योगदान. सिर्फ लोग बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेप्टेंस भी बढ़ने लगी. ऑर्गेनाइजेशन की एक्सेप्टेंस बढ़ने लगी. दे वांटेड टू implement systems and technology in their organization. That is why आपकी IT sector भी booming phase में आएगी. Do you agree with me or not? Clients कौन है उनके? उनके क्लाइंट्स कौन है? IT सेक्टर के क्लाइंट्स कौन है? बिजनेस ही तो है. बिजनेस को रिक्वायरमेंट है. दैट इज व्हाई दे आर मेकिंग मोर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम. सो विद दैट द रोल ऑफ मैनेजर्स एक्चुअली ग्रू लाइक एनीथिंग, जो कि अलाइनमेंट का काम करने लगे. एंड नाउ इन टुडेज केस आल्सो इट हैज ग्रोन अप लाइक एनीथिंग. और अब तो और ग्रो होने वाला है. इसलिए आप देखो बहुत सारे अभी जो A+ listed colleges हैं, especially when talking about IIMs, वहाँ पे देखो ना MBA in analytics, MBA in analytics in marketing, analytics in HR, specific domain specific पढ़ाई हो रहे हैं. So you have to understand. See again मैं बोल रही हूँ ये सब कोडर नहीं, इनको सिर्फ पता करना है कि टेक्नोलॉजी क्या है, सिस्टम क्या है और हमारे बिजनेस के लिए क्या है, अलाइनमेंट पे काम करने आना. So this skill set is actually very important for any of the managers in today's time.
Then framework of information system needed by business professionals and everyone needs to understand. First is the management challenge. क्या है challenge organization के लिए आज के डेट में? मैनेजमेंट सबसे बड़ा challenge आज किसी भी organization के लिए क्या है? Competition to meet up with their expectation of their customers. Competition आप कैसे indirectly लिंक है उससे? आज कस्टमर इज किंग बोलते हैं ना, बिजनेस बोलता है कस्टमर इज किंग. कस्टमर किंग सिर्फ एक महीने में, बिकॉज दे कैन स्विच फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट. दैट्स इट. अगर आपको कोई सामान आज इस दुकान पे नहीं मिली तो आप दूसरी दुकान पे चले जाओगे. यू हैव ऑप्शंस, 1000 ऑप्शंस विद यू. सो एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट लूज one of its customer also, because there is competition, cutthroat competition in the market. So meeting the expectations of their customers are the sole objective of and the most prioritized objective of any organization. So to nahi bole, there are many other, but the most prioritized based objective of the any organization. So they have to face this challenge. So your information system should facilitate, it should be developed in such a way that these of the management challenges can be curtailed to the maximum. देखो 100% कुछ solve नहीं हो सकता, but still to the maximum level it can be sorted. Then technologies is just coming like anything in the market. So कौन सी टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, कौन सी टेक्नोलॉजी को आप इंटीग्रेट कर सको अपने बिजनेस में, that is also a very difficult task for the organization. Okay, so ये चीज पे भी ध्यान. तो कोई भी सिस्टम डेवलप हो रहा है, so they have to take these things into consideration before the development. Then the foundation concepts. देखो कोई भी सिस्टम जो है, अभी मैंने बात की ना कि फेल हो रहे थे. फेल क्यों हो रहे थे? बिकॉज उनकी ऑब्जेक्टिव प्रोसेस और उनकी स्ट्रैटेजी के साथ मैचअप नहीं हो रहा था सिस्टम. ठीक है, उनको चाहिए कुछ, रिपोर्ट कुछ बन के आ रहे हैं, आप एंट्री नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका जो डेली बेसिस से डेटा आ रहा है और इट इज ऑल टुगेदर इनटू डिफरेंट फॉर्मेट. अभी क्या है, आपके सारे फॉर्मेट्स पहले चेक किए जाते हैं एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट आपका पूरा बिजनेस जो है सिस्टम जो है वो डिजाइन किया जाता है. अगर आपने कुछ फॉर्मेट में चेंजेस किए तो आपका सिस्टम भी उस बेसिस पे चेंज हो जाता है. तो मैंने एक बार लास्ट क्लास में बोला था ना आप लोगों को, बैंकिंग ऐप सबसे ज्यादा होते रहते हैं रिनोवेट, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजीज बार बार इंटीग्रेट किए जाते हैं. सो दे जस्ट टेक अ ब्रेक, इंटीग्रेट इट, देन रिन्यू इट एंड देन स्टार्ट अफ्रेश. सो दिस इज द वे. फाउंडेशन कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदला, भले ही अपना सिस्टम में हम चेंजेस लाएं, लेकिन हमारी जो बिजनेस की कोर वैल्यूज है that should never be changed. What are the core values of any business? What are the core values of any business, class? meeting the customers' expectations. Yes, core values. किसी भी अपनी employees to satisfy your employees to the satisfaction level should be like the good working environment. All these are the core concepts. आपकी जो basic processes हैं, ठीक है. अभी सोचो कितना भी जमाना बीत जाए, आज से yes integration, accountability, very good, trustworthiness. These are the core values of any business. तो हम वो कैसे ट्रस्ट जनरेट करते हैं, आपके सिस्टम को पता होना चाहिए, आपके सिस्टम को पता होना चाहिए. एक आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. इट्स नॉट अ वेरी करंट स्टोरी, इट्स एन ओल्ड स्टोरी. अब ऐसे स्टोरीज आपको बहुत मिल जाएंगे सुनने को, बट they were the pioneers. That is why I'm just telling you कि उन लोगों ने कुछ लैंडमार्क और कुछ एग्जांपल सेट किए मार्केट में. बिकॉज ऑफ दैट नाउ द टेक्नोलॉजी एंड द सिस्टम हैव बिकम सो पॉपुलर. होंडा का नाम सुना है? ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस नेम. होंडा सिटी कार का एक वर्जन लॉन्च हुआ, ठीक है. उस जब लॉन्च हुआ तो अराउंड 200 कार्स वर सोल्ड. आई एम नॉट टॉकिंग दिस हैपेंड वे बैक इन 2000. अभी स्टोरी नहीं है. When supply chain, e-supply chain management was very much into the market. और Honda का है अभी भी supply chain one of the best माना जाता है. उनका पूरा जो पूरा overall supply e-supply chain मैंने, I'm not talking about normal supply chain, उनका e-supply chain मैंने. क्या हुआ, and उसमें integration of CRM was also being done. उनके एक किसी customer ने within the launch of 2-3 days एक किसी customer ने एक complaint की regarding the car का कुछ कंप्लेन हुआ
तो जस्ट एक स्टोर पे ये पता चला कि दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट. ओके, अब आप सोच लो थ्रू आउट द कंट्री, एंड दैट कंप्लेंट वाज मेड इन समवेयर तमिलनाडु, इसमें चेन्नई विन्नई में कहीं हुआ था, ठीक है, उस समय. एंड देन अराउंड अक्रॉस द कंट्री, बता रही हूँ मोर देन 200, बट इट वाज लेस देन 300, इतना मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है. Just came into my mind. I just thought of sharing with you all. उन लोगों का हुआ, पता चला उनको. Then what happened? They immediately they called, क्योंकि manufacturing defect था, so they thought कि it would have, उन्होंने तुरंत सारी selling रोकी, and they thought कि जो rest cars जो sold हुए हैं उसमें भी ये problem, maybe because nobody else have complained, only because of one complaint. उनकी सप्लाई चेन इतनी सॉलिड है, इमीडिएटली विद इन अ डे उन लोगों ने सारे कार वापस मंगवाए. इन 48 आवर्स दैट मैटर वाज सॉल्व्ड, और जिनकी फर्दर लाइंड अप प्रोडक्शन थी, बुकिंग्स थी, उसको उनमें सबने ये किया तुरंत, विद इन रियल टाइम सब कुछ हुआ काम. एंड विद इन 48 आवर्स ऑल कार वेयर सॉर्टेड, प्रॉब्लम्स वेयर सॉर्टेड, एंड इट वाज सेंट बैक टू द कस्टमर्स. मैम नेक्सॉन ने भी सेम किया था. ये सब सारे आप, हाँ, नेक्सॉन, अभी बोले ना आपको, अभी के टाइम पे बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे आपको ऐसे. सैमसंग में ले लो, सैमसंग ने हैज आल्सो डन दिस थिंग, IFB ने किया है. देयर आर सो मेनी कंपनीज नाउ दे आर डूइंग, बट दे आर द पायनियर्स. होंडा इज अ बिग नेम. क्या हुआ उनका, उससे फायदा क्या हुआ? गुडविल इंक्रीज. न्यूज़पेपर में आए थे इनके ये सब स्टोरीज, बट वो तभी कर पाए जब उनका सप्लाई चेन पूरा इतना सॉलिड तरीके से काम. सो वही अभी आप जब किसी ने बात की ना ट्रस्ट वर्दीनेस की, तो आपका सिस्टम को आपका ट्रस्ट वर्दीनेस पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपका सिस्टम ऐसे काम करेगा विच विल गिव यू इमीडिएट क्वेरी अबाउट योर कस्टमर्स, वेयर दे आर स्टेइंग, इमीडिएटली यू कैन कॉल बैक. आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी सॉलिड होनी चाहिए, फटाफट कोई जाएगा, वो पिक करेगा, रेक्टिफाई करेगा, एंड देन गेट इट बैक टू योर कस्टमर्स. आज तो हर दूसरी तीसरी कंपनी कर रही है, ठीक है. सो दिस इज द वे, द आपकी फाउंडेशन कॉन्सेप्ट टच नहीं होनी चाहिए. देन ऑब्वियसली डेवलपमेंट प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट थिंक कि अच्छा ठीक है हमने सिस्टम डेवलप कर लिया, डाल लिया, अब नाउ वी हैव टू डू द बिजनेस वेरी सोलफुली और साइलेंटली और आराम से तसल्ली से. नो, इट नेवर हैपेंस. यू हैव टू ऑलवेज डेवलप योरसेल्फ, ऑलवेज. आपके पीपल डेवलप होते रहने चाहिए, आपके स्किलफुल, ज्यादा स्किल सेट उनको बढ़ाते रहो, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन. अभी जस्ट तुम्हारे पास आउट सुपर सीनियर्स जस्ट पास आउट, अभी मार्च में क्या है, उन लोगों ने मुझे एक दिन ऐसे ही मेरे मेंटी से बात हो रही थी, दे वर टेलिंग मी कि मैम अभी तक हमने एक पर्टिकुलर कंपनी में 2 ट्रेनिंग्स ऑलरेडी डन मैम, कंप्लीटेड, इतना सब कुछ सीख लिया. मतलब जस्ट क्योंकि है अपग्रेडेशन है, जिस प्रोफाइल के लिए गए थे वो प्रोफाइल में भी इतना ज्यादा अपग्रेडेशन हो गया. सो दिस इज द वे यू नीड टू डेवलप योरसेल्फ एवरी टाइम, एंड यू कैन नॉट से नो टू इट. Obviously, you will never say no. Then business applications, what all you are bringing in, new types of softwares, apps which are being developed. आप देखते रहते हो कौन सा यूजफुल वो आपके लिए, ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन आपके बिजनेस के लिए यूजफुल हो सकता है. अभी आप देखो ना, इंस्टा स्टोरीज है. इंस्टा क्या है? एक सिस्टम है, एक एप्लीकेशन है. अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या पड़ी है कि अपनी इंस्टा स्टोरीज डालें, फेसबुक पेज बनाए. What is the requirement? बहुत अच्छा ट्रस्टेड ब्रांड है, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, मार्केट में प्रोडक्ट इज क्वाइट एस्टैब्लिश्ड. उनको क्या जरूरत है आज के डेट में कि अपना इंस्टा पेज हैंडल करें या अपना ट्विटर पेज हैंडल करें? क्या जरूरत है? Yes, students. Because most of the thing happen on social media. Yes, because they know that people digital presence have increased. Okay, so आप जितना अपना डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाओगे उतना ज्यादा you will be known in the market. So आपको देखते रहना है क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, and then you can just do it as per the requirement of your organization. Then comes the fundamental roles of information system in business. At the base level, as we have done earlier, discussed earlier also, support business processes and operations which is happening on the daily basis. जैसे हमने last class में discuss किया था, HR में attendance management system, okay, your scheduling of time,
ठीक है, आपका आज शेड्यूल बना है, आज इतने देर से इतने देर आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, इससे देर से इतने देर पे आपको दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना है. सो दैट काइंड ऑफ शेड्यूलिंग व्हिच इज डन. आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपको क्या क्या आज डिलीवर करना है, आप क्या क्या आज रिसीव करने वाले हैं. सो ऑल दोज शेड्यूलिंग व्हिच इज वेरी मच स्ट्रक्चर्ड इन नेचर. अच्छा, और एक चीज देखो, इसका बेस देखो कितना ज्यादा. ये ऐसे ही नहीं बनी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की इसीलिए बेस लेवल पे इतना बड़ा नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम काम, स्ट्रक्चर्ड काम व्हिच इज हैपनिंग एट द बेस लेवल. आपके सप्लायर्स के साथ आपकी जो डीलिंग चल रही है स्ट्रक्चर्ड है. आप जानते हो, आपकी लिंक आप अभी कॉमर्स में पढ़ेंगे, ऑल ई टेंडर है, सब कुछ, ऑल दोज थिंग्स आर इनबिल्ट इन नेचर. सारा सब कुछ काम आपका सिस्टम कर रहा है. नोबडी इज देयर टू जस्ट लुक इनटू. आपको बस ऑर्डर प्लेस करना है, एवरीथिंग विल बी डन ऑनलाइन. सब कुछ ऑटोमेटेड फॉर्मेट्स वर्किंग. सो दिस एक्चुअली प्रोवाइड्स द ओवरऑल सपोर्ट टू द बिजनेस. ठीक है, बिजनेस प्रोसेसेस एंड द ऑपरेशंस व्हिच इज बीइंग डन on the daily basis, on a real time basis. Sales, real time sales report सारा मिल रहा है आपको, डेटा आप गैदर कर रहे हैं, अपडेट होता चला जा रहा है. इन्वेंट्री का, you name it, that is there. आपकी अकाउंटिंग का, how much purchasing, selling is happening. अब आपको मैनेजर को थोड़ी पता है कि आपको क्या 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 सेल हो रही है. Obviously the data which you have gathered, अब आपके पास वो डेटा ट्रांसफॉर्म्ड होके इंफॉर्मेशन होके बन के आता है आपके पास. Then you start making decision on to that. So mid level पे क्या होता है, सब decision making support is taking place, and at the top level decision आप लेते हो कि ठीक है ये सेल्स एरिया बहुत अच्छा है, and then top level will decide कि हम लॉन्च कहाँ करें अपना प्रोडक्ट फर्स्ट, कहाँ लॉन्चिंग होनी चाहिए, कहाँ आपको ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो मिलनी चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी which will when you will bring which will have an added value which will make you something apart from your competitors. So ये सब सारी चीजें आप यहाँ पे डिसाइड करते हो. Got it, student? Trends in information system. Yes, how ma'am. it has changed over the period of time. So actually in 50s and 60s अभी भी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग. ठीक है, बहुत पुराना 50s 60s की बात है. इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग फ्लॉपी में, वही सिंपल आपका जैसे कैलकुलेटर काम करता है आपका, सिंपल वैसा चलता था. ठीक है, ये फ्लॉपी के जमाने की बात है. Before that, in fact, 60s 70s in floppies. Then came management reporting. 60s 70s. MIS was developed, but again only till the inventory management system. सिर्फ क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा अच्छा बड़ा इनके यहाँ इंफॉर्मेशन सिस्टम है. उस सिस्टम में क्या है कि बस आपका इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है, इतने इन्वेंट्री आए इतने इन्वेंट्री गए, बस यही काम आपका करता था. Then in 70s and 80s started facilitating in decision support system. Decision support system, interactive and ad hoc support of the managerial decision making process. But still in this time, जो हम alignment वाले issues हम बता रहे थे ना, वो problem यहाँ आ रहा था. तो इसीलिए support system के लिए थोड़ा तो आपका system sophisticated हुआ, ज़्यादा advanced हुआ, but not to that level, not to that level. Then came the era of 80s and 90s, wherein booming phase system started, means again ये 80 late 80s 90s की बात मैं कर रही हूँ, not exactly आपका पूरा वो time. Then यहाँ पे end user computing system started taking place. ये सब era में आपके expert system, strategic information system, EIS, ये सब सारी चीजें आपकी develop होनी शुरू हुई. लेकिन integration was still lacking. अगेन मैं बात कर रही हूँ, इंटीग्रेशन अभी भी लैक कर रहा था. बस सिस्टम एडहॉक बेसिस पे काम करता था. अच्छा, आपको अकाउंटिंग के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हम इम्प्लीमेंट कर देंगे. आपको मार्केटिंग के लिए सेल्स डेटा बनाने के लिए चाहिए, ठीक है, हम दे देते हैं. सो दैट वेज इट वाज डेवलप्ड. बट मेन चेंजेस केम इन 90s 2000, जब पूरा इंटरनेट बेस्ड ई बिजनेस स्टार्ट हो गया. पूरा ई कॉमर्स, ई सिस्टम, web-enabled enterprise and global e-business operations and electronic commerce on the internet, intranets, extranets, and all other networks. This was the booming phase for the entire economy throughout the globe. In fact, just after 1991, the liberalization policy when happens in our country also. पता है ना liberalization policy क्या है? Yes, ma'am. When our market was opened for the multinationals,
इसके बाद तो, और सबसे ज्यादा अगर आईटी सेक्टर कहीं का बूम हुआ है तो कौन से कंट्री का हुआ है? अपने देश में, India. इंडिया। मतलब ये दिस इज वाज द मोस्ट ग्लोरिफाइड इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। अभी तक बोलते हैं ये वाला टाइम वापस नहीं आया, अभी इतना ज्यादा ग्रोथ कभी नहीं हुआ है अपनी कंट्री में। आप लोग चेक कर सकते हो, डेटा है पूरा, इतना ज्यादा ग्रोथ कभी नहीं हुआ। ऑल बिकॉज क्योंकि हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहे थे, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी की बात। द इंटायर ग्लोब इज योर मार्केट, नॉट ओनली योर रीजन, योर कंट्री। अच्छा, बाद में हम ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स जनरली लोग सिनोनिम यूज करते हैं, जो कि है नहीं, इट्स एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। E-commerce is what you are doing the commercial business, what you are doing the shopping and the payment and all which you are using, that is e-commerce. But talking about the entire internet based, electronic based information systems of the organization, ये ई बिजनेस होता है, जहां पूरा बिजनेस आपका सेटअप है आपके सिस्टम। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग मैनुअली। आज के डेट में इफ आप एक्सेल पे कुछ काम कर रहे हो, वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, दैट इज द मैनुअल टास्क यू आर डूइंग। एवरीथिंग शुड बी सॉफ्टवेयर इनेबल्ड, सिस्टम इनेबल्ड। इनफैक्ट आप जब अपने कंपनीज में ज्वाइन करोगे, आप मेल भी लिखते हो ना, दैट मेल इज इलेक्ट्रॉनिक, वो प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक मेल है, क्योंकि वो सब सारी इनेबल्ड है। आपको सिर्फ उसमें इंटरनेट कनेक्शन रहे कि नहीं, आपका अपना इंटरनल पूरा सेटअप है, इंट्रानेट है, वो आपका इंट्रानेट फैसिलिटेट करता है आपको कि यू कैन सेंड मेल टू एनीवन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन हु इज मे बी, आप यहाँ बैठे हो और आपका कोई बॉस या कोई आपका कलीग बैठा हुआ है इन एनी पार्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कंट्री, एनी पार्ट ऑफ, ठीक है। देन अगेन आफ्टर 2000 मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी स्टार्टेड कमिंग। इसमें एक और एरा ऐड हो चुका है 20s वाला, जस्ट अब जब इसमें एनालिटिक्स भी ऐड ऑन हो गया, ठीक है। अभी लेटेस्ट बुक में वो भी एडिशन आ गई चुकी है इसमें। एनालिटिक्स अगेन नाउ एंटरप्राइज वाइज कॉमन इंटरफेस एप्लीकेशन, डेटा माइनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, कस्टमर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सब ये सब देखो पहले भी था। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज नॉट टुडेज कॉन्सेप्ट, सो इट्स अ वेरी मैनुअल कॉन्सेप्ट, बट आज विद द कमिंग अप विद द न्यू टेक्नोलॉजीज, जैसे भी हम बात कर रहे थे चैटबॉट्स के बारे में, पूरा कस्टमर रिलेशन का पूरा एंगल ही चेंज करके रख दिया है, ठीक है। सो दिस इज द वे न्यू टेक्नोलॉजीज कमिंग इन, सो इट इज मेकिंग योर ओल्ड कॉन्सेप्ट्स मोर एडवांस इन नेचर, ज्यादा से ज्यादा उसको ग्लोरीफाई और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाना। तो ये 2020 वाला भी एक ऐड ऑन हो चुका है, आई विल जस्ट अपडेट इट। व्हाट इज ई बिजनेस? जो अभी हम जस्ट वी वर डिस्कसिंग, यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजीज टू एम्पावर, नाउ अंडरस्टैंड योर प्रोसेसेस, बिजनेस प्रोसेसेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, अभी जो मैं बात कर रही थी, ई कॉमर्स मीन्स आप अपने पूरी कमर्शियल एक्टिविटीज विच इज हैपनिंग विद organization, with your customers, with your suppliers, with your bankers, everything should be done electronically. Getting my point, students? Understood the difference between e-business and e-commerce? Yes, ma'am. Yes. E-business होता है जो पूरा सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, wherein you are doing and integrating all your departments and doing the business across your organization. But electronic commerce is done only for the commercial purpose, okay, for selling, purchasing, everything. Now e-business also facilitates in collaboration within the companies, with your managers, with your colleagues, with your seniors, with your juniors, with your subordinates, for retrieving the information, for dissemination of the information. ये सारा काम आपका e-business का। Collaboration with means information system का main काम ही है electronic business बनाना, बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिक कर दो पूरा, एवरीथिंग शुड बी सिस्टम इनेबल्ड। कुछ भी आप काम विदाउट सिस्टम नहीं होता, इसीलिए लाइट जाती है, अगर आज लाइट नहीं, ऑफिस में काम उस दिन बंद रहता है, स्पेशली इन आईटी सेक्टर। आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि पूरा काम आपको तो बना हुआ है इस पे, कितना देर आपको सर्विस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और बैकअप कितने देर का होगा। So that is where this is happening. Collaboration with your customers, suppliers, their stakeholders, everything, e-business. In essence, an online exchange of value. What is value over here, students? Online exchange of value. क्या है value यहाँ पे? Information. Product information, yes. Product नहीं, सिर्फ information.
इसीलिए कहते हैं ना, आज आपके ऑर्गेनाइजेशन को ये डर नहीं है कि कोई उनका पैसा चुरा ले, उनको आज ये डर है कि उनका कोई इंफॉर्मेशन ना चुरा ले। इंफॉर्मेशन हैज बिकम मोर वैल्यूएबल फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन देन देयर मनी। आपके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन है, आप बहुत पैसे बना लोगे, बट आपके पास आपकी इंफॉर्मेशन की चोरी होगी, देन इट विल क्रिएट ग्रेट लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो ये वैल्यू है एक ऑर्गेनाइजेशन की। एट द एंड ऑफ द डे, हाउ मच इंफॉर्मेशन यू हैव जनरेटेड। यूज ऑफ e-business, re-engineering in the internal business processes, any changes which you are making changes in the reporting। ठीक है, हम अपना रिपोर्ट ना किसी और वे में बनाएंगे, मे बी आवर कैटेगरी, आवर कॉन्टेक्स्ट हैज चेंज। ठीक है, चेंज हो जाता है, तो SDLC में हम करेंगे कैसे री-इंजीनियरिंग हम करते हैं। देन एंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम, ये पूरा का पूरा ERP आपको फैसिलिटेट करता है, सपोर्ट कम्युनिकेशंस, coordination among team and the workforce, and obviously electronic commerce, buying, selling, marketing, servicing of products and services over the networks. So overall, what is system? System is a set of interrelated components with a clear defined boundary। boundary क्या होगी? आपकी organizational boundary। ठीक है, but boundary means वो walls वाली boundary नहीं, it's the boundary where there is the reach of। अभी आप सबको क्यों IBS का ID दिया गया? All of you have received the ID of IBS or not? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, दिया ma'am. गया आप लोगों को? So that you are the valid and authorized member of our institute। तो क्या हुई, वहां भले कहीं भी बैठे हो, लेकिन आप इस बाउंड्री, IBS मुंबई की बाउंड्री में you are there। ठीक है, वर्चुअली आप हम लोग सब टुगेदर we are working together to achieve a common set of objectives by accepting inputs and producing outputs in an organized transformation process। So here we will end। ठीक है, then we will again discuss some more in the next class, and there will be a small test in the next class, students। Not test, just a fun evaluation नहीं है अभी तक जो भी हमने किया है। So we will just do, there are two ways of doing the tests with you all। One is through your proper test, जिसमें मैं आपको किसी भी टाइम बोल दूं कि इस टाइम आपका टेस्ट ओपन होगा, you can just get into and you can just do your test, you will get your marks immediately। ठीक है, दूसरा वे होता है, एक choice method होता है, that we will do it, that's a fun doing, you all will enjoy doing it। मैं कुछ questions डालूंगी, उसके options रहेंगे, you just have to click it, we'll just find who is correct and who is not। Nothing, it's just it's not an evaluation, you will just enjoy doing it। So next class, I have updated the slide on your quick force page, so please just go through it। जितना पढ़ा है अभी तक उतना ही पूछो। ठीक है? Okay, Okay, ma'am. Yes, any question? Okay, ma'am. Somebody has raised the hand. Can you please share your number? We will add you in the official group of our class. We are adding every faculty if possible, so it would be easy to connect with you। ठीक है, sure। Yes, got it? Just a minute, ma'am. I will note it down। ठीक है? Thank you, ma'am। Sure, thank you so much all of you, take care। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.